یہ کہانی ہے 20 فروری 1994 کی۔ رمضان کا مہینہ، پشاور کی سرد اور بھیگی ہوئی صبح۔ شیراز سمد 14 برس کا طالب علم پشاور ماڈل سکول میں میٹرک کا پرچہ دینے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ذیشان بھی بس میں سوار ہوا۔ دونوں نے کتابیں نکالی اور پڑھائی شروع کر دی۔ کسی کو خبر نہ تھی آج سب کچھ بدلنے والا تھا۔ بس حاجی کیمپ کے آخری سٹاپ پر رکی۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ تبھی 3 نقاب پوش بس کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ کنڈکٹر نے دروازہ بند کیا مگر انہوں نے شیشے پر پستول مار کر دروازہ توڑ دیا اور بس میں داخل ہو گئے۔ 5 خواتین اساتذہ، ایک مرد استاد اور 70 کے قریب بچے دم بخود رہ گئے۔ نقاب پوشوں کے ہاتھوں میں پستول اور گرینیڈ تھے۔ ان میں سے ایک سیدھا ڈرائیور اورنگزیب کے پاس جا بیٹھا، پستول کنپٹی پر رکھ دی۔ اورنگزیب نے غصے سے کہا، جب تک بس انچارج نہیں کہیں گے میں گاڑی نہیں ہلاؤں گا۔ ہائی جیکروں نے گرینیڈ کی پن کھینچنے کی دھمکی دی۔ اورنگزیب نے بچوں کو دیکھا اور بس چلا دی۔ بعد میں اس نے کہا، اگر بات صرف میری جان کی ہوتی میں رک جاتا، مگر یہ بچوں کی زندگیاں تھیں۔ بس پشاور سے نکل گئی۔ سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ رب نواز بتاتا ہے کہ تینوں نقاب پوش دری زبان بول رہے تھے۔ وہ بچوں کو بار بار ڈراتے، یہ بس ہائی جیک ہو چکی ہے، حرکت کی تو گرینیڈ پھاڑ دیں گے۔ راستے میں ڈرائیور نے بس واپس موڑنے کی کوشش کی مگر نقاب پوشوں نے اسے پستول کے بٹ سے مار کر سیدھا چلنے کو کہا۔ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہائی جیکروں نے بس میں موجود سب بچوں اور اساتذہ کی جیبیں تلاشی لی۔ شیراز کے 5 روپے بھی لے لیے اور ان پیسوں سے بس میں ڈیزل بھروایا۔ بارش کی وجہ سے کھڑکیوں پر دھند چھائی تھی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ بس ہائی جیک ہو چکی ہے۔ رب نواز اور دوسرے بچوں نے پرچیاں لکھ کر باہر پھینکی، ہماری بس ہائی جیک ہو گئی ہے، مدد کریں۔ مگر بارش میں وہ پرچیاں پھٹ گئیں۔ لوگوں کو لگا اسکول بس کسی پکنک پر جا رہی ہے۔ چیک پوسٹیں بھی زیادہ نہ تھیں، بس سیدھی اسلام آباد پہنچی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے رک گئی۔ ایک پولیس اہلکار دوڑتا ہوا آیا، بولا، یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ ڈرائیور نے کہا، یہ بس ہائی جیک ہو چکی ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اجلاس چھوڑ کر فوراً بس پر پہنچے اور اندر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ISI کے بریگیڈیئر مجید بھی بس میں داخل ہوئے۔ 2.5 گھنٹے تک مذاکرات ہوتے رہے۔ ہائی جیکروں نے $10 ملین افغانستان میں گندم کے ٹرک، ایک یرغمالی اور ہیلی کاپٹر مانگا۔ افغان سفارتکاروں نے سمجھایا، یہ حرکت تمہارے ملک کی بدنامی ہے۔ آخر ہائی جیکروں نے شرط رکھی، ہمیں افغان سفارت خانے جانے دو، تب ہم عورتوں اور چھوٹے بچوں کو چھوڑیں گے۔ نصیر اللہ بابر نے حامی بھر لی۔ شام کے وقت نقاب پوشوں نے 5 خواتین، اساتذہ، چھوٹے بچوں اور کئی طلباء کو رہا کر دیا۔ اب بس میں 16 لڑکے اور ایک مرد استاد باقی رہ گئے۔ رہا ہونے والوں کو میرٹ ہوٹل پہنچایا گیا۔ انہیں کھانا دیا گیا اور اپنے گھر والوں کو فون کرنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نقاب پوش باقی بچوں کو لے کر افغان سفارت خانے روانہ ہو چکے تھے اور آگے جو ہونا تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ ہائی جیکر بس کو افغان سفارت خانے لے گئے۔ وہاں بس کو احاطے میں روک کر بچوں اور استاد کو اندر لے جایا گیا۔ سب کو ایک ہال نما کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ایک نقاب پوش مسلسل ان پر بندوق تانے بیٹھا رہا۔ کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا جس کا دروازہ گیلری میں کھلتا تھا۔ باہر پولیس اور کمانڈوز کی بھاری نفری موجود تھی۔
लेकिन किसी को इल्म न था कि आगे क्या होने वाला है। बच्चों को इफ्तार का खाना बाहर से भेजा जाता, मगर हर बार हाईजैकर पहले खुद खाना चखते। कहीं उसमें जहर या बेहोशी की दवा तो नहीं मिली हुई। अफगान सफारतकार भी आकर बच्चों के साथ बैठते और तसल्ली देते। शिराज को याद है, एक दिन उसने वॉशरूम जाने की इजाजत मांगी। रोशनदान से नीचे झांका तो दर्जनों एसएसजी कमांडोज देखे जो पोजीशन लिए खड़े थे। शिराज का दिल धक से रह गया। उसे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। उसी शाम शिराज के वालिद को अंदर आने की इजाजत मिली। उन्होंने बेटे को गले लगाया। आंखों में आंसू थे। जाते हुए आहिस्ता कहा, कुछ ऐसा करना कि ये लोग तुम्हें बाहर भेजने पर मजबूर हो जाएं। शिराज ने हैरत से पूछा, क्या करूं? वालिद बोले, कहना पेट में शदीद दर्द हो रहा है। शिराज को याद आया, पहले भी एक बच्चा अचानक बीमार हुआ था। उसे के आ रही थी। हाईजैकर उसे बाहर ले गए। वो बच्चा बाहर निकलते ही पुलिस के हाथ लगा और फौज के पास पहुंचा। बाहर सहाफियों में खबर गूंज रही थी कि शायद खाने या जूस में कुछ मिलाया गया ताकि कोई बच्चा बीमार हो और उसे बाहर निकालकर अंदर की मालूमात ली जा सके। कौन कहां बैठा है, कितने हाईजैकर हैं, किसके पास हथियार है। सहाफी नासिर मलिक बताते हैं कि फौज हर बच्चे से पूछती, हाईजैकर कहां बैठे हैं, बच्चे कहां हैं, कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। पूरी रात शदीद बारिश बरसती रही। सर्दी तेज हो गई। बाहर पुलिस, फौज और सहाफी सब इंतजार में थे। किसी को मालूम न था ऑपरेशन कब होगा। सुबह तक यही सिलसिला चलता रहा। हर खाने या नाश्ते के बाद चंद बच्चों को बीमार जाहिर करके बाहर निकाला जाता। फौज उनसे तफसील मालूम करती रही। बच्चे डरे हुए थे, मगर जानते थे बाहर निकलना ही जिंदगी है। दूसरे दिन की शाम बच्चों के दिलों में खौफ और भी गहरा हो चुका था। रबनवाज के दोस्त बाद में बताते हैं कि शायद खाने में कुछ जरूर मिलाया जाता था जिससे पेट में दर्द होता, तकलीफ बढ़ती जाती। उसी दौरान वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को लम्हा बलम्हा सूरत हाल की रिपोर्ट दी जा रही थी। जनरल नसीरुल्लाह बाबर बार बार कहते, मुझे इन बच्चों के बदले यरगमाल बना लो, लेकिन आईएसआई ने इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वजीर दाखिला 3 अफगान हाईजैकरों के हाथ यरगमाल बन जाते तो पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी होती। आखिर फैसला हुआ, मामला आईएसआई संभालेगी। बेनजीर भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी को कहा, यह एक्शन आईएसआई करेगी, बच्चों को छुड़वाना है, अगर कोई नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। जनरल काजी ने फौरन जनरल वहीद को फोन किया, सर, एसएसजी कमांडोज का एक सेक्शन फौरी इस्लामाबाद चाहिए। इसी लम्हे एसएसजी कमांडोज को जहाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इधर हाईजैकर बार बार चाय मांगते रहे। सिक्योरिटी इदारों ने मंसूबा बनाया कि चाय में बेहोशी की दवा मिलाई जाए ताकि नकाबपोश जाग ना सकें और ऑपरेशन के वक्त कमजोर पड़ जाएं। और यूं फौज ने खुफिया ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी। सब जानते थे ये कहानी बस यूं खत्म नहीं होने वाली। रात गहरी हो रही थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सफारत खाने के गिर्द सन्नाटा छाया हुआ था। मगर उस सन्नाटे के पीछे पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक थे। जनरल जावेद अशरफ काजी और उनकी टीम ने तय कर लिया कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। हाईजैकर को छोड़ देना खतरनाक था। जनरल काजी ने बेनजीर भुट्टो से कहा, मैडम, अगर आज इनकी ब्लैकमेलिंग मान ली
तो कल रोज पेशावर से एक बस हाईजैक होगी। इन्हें जिंदा मत छोड़े। काबुल वालों को सबक सिखाना होगा। बेनजीर ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, जो करना है करो। अगर कोई नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। कमांडोज को हाईजैकरों की पूरी पोजीशन बता दी गई। कौन जागता है, कौन सोता है, कौन कुर्सी पर बैठा बंदूक ताने हैं, सब कुछ इदारे जानते थे। ऑपरेशन में जरा सी गलती किसी बच्चे की जान ले सकती थी। इसीलिए सफारत खाने जैसी मॉडल इमारत बनाई गई। एसएसजी उस पर घंटों प्रैक्टिस करते रहे। हाईजैकर्स को नींद में रखने के लिए चाय में बेहोशी की दवा मिलाई जाती रही। नकाब पोशों की आंखें बोझल हो रही थीं, मगर उनके हाथ हथियारों पर मजबूती से जमे थे। आखिर रात के दूसरे पहर हुक्म आ गया, अब ऑपरेशन होगा। जनरल काजी ने प्लान समझाया। 2 कमांडोज गैलरी के दरवाजे से अंदर जाएंगे। हदफ वो नकाबपोश था जो कुर्सी पर बैठा बंदूक ताने था। अगर उसने हरकत की तो उसे फौरन मार देना था। बाकी कमांडोज को हुक्म मिला कि छोटे कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर जाएं। सटन ग्रिन फेंकें ताकि जोरदार आवाज से हाईजैकर्स चंद लम्हे के लिए बहरे और हवास बाख्ता हो जाएं, और फिर कमांडोज उन पर हमला करें। वो लम्हा आ पहुंचा। बाहर सहाफियों को पीछे कर दिया गया। दिल की धड़कनें तेज थीं। अचानक इमारत के अंदर जोरदार धमाका हुआ। शीशे टूटे, तेज रोशनी चमकी। एसएसजी कमांडोज अंदर कूद पड़े। कमरे में मौजूद 2 हाईजैकर कुनूदगी में थे। वो बमुश्किल आंखें खोल सके। कमांडोज ने लम्हा जाया किए बगैर दोनों को वहीं मार डाला। मगर बड़े हाल में बैठा तीसरा हाईजैकर, जो बच्चों पर बंदूक ताने बैठा था, उसने कमांडोज को देखकर फायर किया। गोली एक कमांडो के बाजू को छूती हुई निकल गई, मगर एसएसजी ने पलक झपकने की मोहलत न दी। 2 गोलियां उसके माथे पर मारी। निकाबपोश वहीं खत्म हो गया। कमरे में चंद लम्हे सन्नाटा रहा। बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। फौजी दौड़कर सब बच्चों को बाहर ले आए। ऑपरेशन 40 घंटों बाद मुकम्मल हुआ, और सबसे बड़ी बात, पूरे ऑपरेशन में एक भी बच्चा जख्मी नहीं हुआ। सहाफी नासिर मलिक बाद में बताते हैं, एसएसजी की ट्रेनिंग इतनी शानदार थी कि पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 6 गोलियां चली। तीनों हाईजैकर्स को 2-2 गोलियां माथे पर मारकर खत्म किया गया। जब सब खत्म हुआ तब हुक्काम को यकीन हो चुका था कि ये तीनों निकाबपोश काबुल की इंटेलिजेंस से राब्ते में थे। जनरल जावेद अशरफ काजी बताते हैं, हमारी कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग में पता चला कि ये लोग काबुल में जनरल कासिम फहीम को रिपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए फैसला हुआ इन्हें जिंदा मत छोड़ो, ताकि दुश्मन को पैगाम मिले कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। यूं पेशावर मॉडल स्कूल के बच्चों की वो सुबह जो अंग्रेजी के पर्चे से शुरू हुई थी, इस्लामाबाद के सिफारत खाने में 6 गोलियों पर खत्म हुई, और सब बच्चे अगली सुबह बेनजीर भुट्टो के जाती तैयारे में पेशावर रवाना कर दिए गए। ये कहानी खत्म हो गई। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर और कितनी कहानियां ऐसी छुपी हुई हैं जिनका सच कभी खबरों में नजर नहीं आता। कितने राज, कितने ऑपरेशन,
कितने अनजान हीरो जिनके नाम कोई नहीं जानता। अगर आप भी उन कहानियों को जानना चाहते हैं जो दुनिया से छुपी रहती हैं, तो मिस्क ओरिजिनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किस हिस्से ने चौंका दिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मिलती रहें वो कहानियाँ जो सबको नहीं सुनाई जाते, क्योंकि मिस्क ओरिजिनल पर हम लाते हैं वो सच जो अक्सर खबरों में नहीं आता।